प्रितेश सर बेटा। आदित्य देखो मालूम है ना फॉर्मेट सेंड कैसा करना है? हाँ सर। जरा बता देना तीशा को। ओके चलो, तो यहाँ पर हमने बात किए थे कि इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी अ व्हिच मोशन? इट इज सेड टू बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो बार बार क्या होगा बेटा? चेंज होगा। दैट इज ड्यू टू व्हाट? सो लीनियर एक्सेलरेशन चेंजेस ड्यू टू व्हाट? आई कैन से दैट इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। बराबर। लीनियर वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो क्या चेंज करूंगा तो मैं वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। क्या चेंज करूंगा? I need to change what? Direction. Yes, I need to change the direction of linear velocity. Yes or no? So as the direction of linear velocity changes, I can say that the velocity vector changes, and hence I can say that यहाँ पर when the velocity vector changes, then your acceleration also changes. Is that clear? So that is called as linear acceleration. So in case of a uniform circular motion, I can say that your linear acceleration changes, and linear acceleration के हमने दो नाम दे दिए थे. We call linear acceleration either radial acceleration, or we also call it as a which acceleration? We call it as a centripetal acceleration बोलते हैं. बराबर ना? Yes or no? Right? And we have also seen the formula for radial acceleration. तो बताइए definition of centripetal acceleration या radial acceleration क्या होगा? It is an acceleration which is directed along the radius and towards the center of the circle. यही होता है कि नहीं होता है ना? Yes sir. हाँ सर। Yes sir. यहाँ पर और इसके हमने तीन फॉर्मूले भी देखे थे. AC will be equals to V into omega, AC will be equals to omega square into R, and AC will be equals to V square upon R. So these are the three formulas of linear acceleration or radial acceleration or centripetal acceleration, which is along the radius and towards the center of the circle. Is that clear? Yes, sir. All right. Now, please pay attention something else. अगर मैं acceleration को vector form में लिखता हूँ, if I write in terms of vector form, then I can say that my acceleration vector will be equals to minus omega square into r bar आता है. ठीक है? Where minus sign क्या indicate कर रहा है जरा वो check कर लेते हैं. तो acceleration vector क्या होगा? That is a vector. तो यहाँ पर ये आपका center हो जाएगा और ये आपका position of the particle हो जाएगा. So acceleration is a vector. acceleration जो है उसका जो डायरेक्शन है और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है, they will be not in the same direction, they will be in the opposite direction. बताइए मुझे, जहां तक मैंने रेडियस वेक्टर की बात किया था, so how I have defined radius vector? Radius vector is a vector that has been drawn from the center of the circle to the position of the particle. यही बताया था ना? तो यहाँ पर I can say that my radius vector has been drawn from the center to the position of the particle. Right, people? Yes or no? Yes, sir. And my acceleration is directed along the radius and towards the center. So tell me, the direction of acceleration and radius vector, are they same or opposite? Opposite. They're opposite. Opposite. And hence there is a minus sign here. तो यहाँ पर negative sign क्या indicate करती है? आपकी जो negative sign होती है वो indicate करती है, indicates the direction of radius vector and acceleration are in opposite direction. ठीक है? तो ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा. ठीक है? अभी ये सब तो हमने बात किए थे रिगार्डिंग विच एक्सेलरेशन? रिगार्डिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बराबर ना? Now what if I can say that if the motion is a non-uniform circular motion, in case of which motion? In case of a non-uniform circular motion. चलो डिवाइड करते जरा. तो यहाँ पर मुझे बताइए, in case of a non-uniform circular motion, I can say that the linear acceleration of a particle performing
circular motion is given as. So can I say that my linear acceleration a will be nothing but it will be equals to d by dt हो गया, है ना, right? बराबर ना, a bar Yes, will be sir. equals to dv by dt हो गया कि नहीं हो गया? अब v बार क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखें तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो v बार विल बी इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस क्या होता है, r बार होता है. इज दैट क्लियर? यस. Yes, sir. Yes. तो Yes, चलो, sure. तो यहाँ पर आई कैन से दैट v के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो a बार विल बी इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ ओमेगा बार क्रॉस r बार. अभी अपने को यहाँ पर डिफरेंशिएशन का एक रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज u इंटू वी रूल. डेरिवेटिव क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. ये रूल है प्रोडक्ट रूल, मालूम है कि नहीं है प्रोडक्ट रूल? Yes, sure. हाँ सर. चलो Yes, इसी sir. को इस्तेमाल करेंगे जरा. तो यहाँ पर आई कैन से दैट मेरा जो a बार आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी u, दैट इज ओमेगा बार क्रॉस dr bar by dt because we need to differentiate with respect to time. u derivative of v लिया हूँ plus v derivative of u. ठीक है. अब मुझे बताइए एक चीज, व्हाट इज dr by dt? dr by dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. दैट इज व्हाट, कैन आई राइट displacement velocity? Yes, so dr by dt can be written as velocity. And secondly d omega by dt क्या होता है बेटा, दैट इज अल्फा होता है कि नहीं होता है, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आई कैन से दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं. बराबर ना. a का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट माय a bar will be nothing but that will be equals to omega bar cross v bar plus r bar cross alpha bar. Is that clear? तो अभी यहाँ पर इन केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन जो है आपका, जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट है. ये जो पहला कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट और सेंट्रिपिटल कंपोनेंट, एंड जो दूसरा कंपोनेंट है उसको नहीं, हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं. ठीक है. सो ए आर स्टैंड्स फॉर रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग उसे और एक नाम देते हैं, वी कॉल इट एज सेंट्रिपिटल कंपोनेंट. एंड AT stands for which component? AT stands for, I can say that is called as a tangential component. कौन सा component बेटा? Tangential component of acceleration. ठीक है. Tangential component of what? Tangential component of acceleration. So from here, what I can say that अगर मैं डायग्राम में देखूं तो अगर मेरा ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो AR कहाँ पर एक्ट करेगा? AR will be acting along the radius towards the center, है ना. अभी देखे कि नहीं देखे, yes or no? और AT कहाँ पर एक्ट करेगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट है, that will be acting tangential to the path, yes or no? तो अब अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है आपका AR है ना, और ये है आपका AT. तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, दैट विल बी योर नेट वैल्यू A. बराबर ना, यस और नो. तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस 2AR AT cos थीटा आएगा, लेकिन थीटा का वैल्यू इन दोनों के बीच में कितना है, 90, और cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आ रही है कि जो आपका एक्सेलरेशन है उस इन केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसके पास कितने कंपोनेंट्स है, हाउ मेनी कंपोनेंट डज इट हैव, it has two components. One is called as a radial component, that is along the radius and towards the center, and another component is called as a tangential component, which is tangential to the position of the particle. So the resultant of AR and AT is your A, whose magnitude is given as root of AR square plus AT square. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. All right. ठीक है. So that will be A bar will be equals to AR plus AT. अच्छा, तो यहाँ पर एक बात याद रखना, A is equals to root of AR square plus AT square. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में. ठीक है. अब सर AR कैसे निकालें,
AR तो अपने को मालूम है, अब भी निकाले। AR को हम लोग क्या बोलते हैं? AR को हम लोग इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आप यूसीएम के अगर बात करो, अभी हमने देखे थे, तो अपन ने जो एक्सीलरेशन पढ़ा है वो कौन सा एक्सीलरेशन पढ़ा है? दैट इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सीलरेशन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सीलरेशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने लीनियर एक्सीलरेशन को ही रेडियल एक्सीलरेशन नाम कहा है, बराबर के नहीं? यस और नो? गुड इवनिंग कपिल। और उसी को ही सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन कहा है, बिकॉज इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है। इज दैट क्लियर? sir. तो A का वैल्यू Yes. 80 हो जाएगा। अब कैसे आएगा वो नेक्स्ट मीटिंग में बताता हूँ, 1 मिनट से कम बाकी है, ठीक है? जल्दी आओ।